شادی ہال کی روشنیاں شور اور مبارکباد کے ہجوم سے نکل کر جب انایا گاڑی میں بیٹھی تو اسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے دل پر آ گیا ہو۔ اس نے اپنے بھاری عروسی جوڑے کو سنبھالا اور اپنی جگہ پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ مائرہ بیٹھی تھی، جو ہال سے نکلتے وقت کافی شرارتی ہو رہی تھی مگر اب خاموش تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زوار خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ ایک بار بھی مڑ کے انایا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سامنے کا شیشہ، شیٹرنگ اور پھر سڑک، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ پانی پی لو گی؟ اچانک مائرہ کی نازک سی آواز گونجی۔ وہ اپنی چھوٹی سی پرس سے پانی کی بوتل نکال کر انایا کی طرف بڑھا رہی تھی۔ انایا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس چھوٹی سی بچی کی معصومیت نے اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کیا۔ شکریہ مائرہ، تم نے پیا۔ انایا نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے پی لیا۔ پاپا نے کہا تھا کہ انایا آپی کو پیاس لگی ہوگی۔ مائرہ نے معصومیت سے زوار کی طرف اشارہ کیا۔ انایا کی نظریں زوار کے چہرے پر ٹک گئی۔ وہ آئینہ دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظریں شاید کہیں اور تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مائرہ کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ انایا کو عجیب سا محسوس ہوا۔ کیا اسے خود یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی؟ کیا وہ اتنا بھی نہیں پوچھ سکتا تھا؟ مگر زوار کی شخصیت ایسے ہی تھی، خاموش، روکھا اور اپنی آم میں مگن۔ گاڑی کے اندر خاموشی اتنی گہری تھی کہ باہر شور مچاتی ٹریفک کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انایا سوچ رہی تھی، کیا یہ سب ایسے ہی رہے گا؟ کیا یہ شادی صرف کاغذوں کا ایک ٹکڑا ہے؟ اس کے والدین نے کتنے مان سے کہا تھا کہ مائرہ کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور زوار کو ایک سہارے کی، مگر سہارا تو دور کی بات، یہاں تو ایک دوسرے کو پہچاننا بھی ایک مشکل کام لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب گاڑی رکی تو زوار پہلے اترا۔ اس نے مائرہ کا ہاتھ تھاما اور اسے نیچے اتارا۔ انایا خود سنبھل کے باہر نکلی۔ یہ گھر اس کا نیا ٹھکانہ تھا جہاں اب اسے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔ گھر کے دروازے پر زوار کی والدہ اور کچھ رشتہ دار استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، ساس نے اسے اندر بلایا مگر ان کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو عام طور پر ایک نئی دلہن کے لیے ہوتی ہے۔ انایا نے سمجھ لیا کہ اس گھر میں اسے کسی خوشی کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ صرف ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اندر جاتے ہی زوار نے مائرہ کو اٹھایا۔ چلو مائرہ، کافی رات ہو گئی ہے، تمہیں سونا چاہیے۔ پاپا، انایا بھی کہاں سوئیں گی؟ کیا وہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ مائرہ نے ضد کی۔ انایا کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مائرہ کو گلے لگا لے۔ زوار رکا۔ اس نے انایا کو ایک نظر دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ انایا کے لیے ایک الگ کمرہ تیار ہے مائرہ، وہ اب بڑی ہو گئی ہیں، ان کا کمرہ ان کے پاس ہے، تم چلو، میں تمہیں دودھ پلا دوں۔ زوار نے بات کاٹ دی اور مائرہ کو لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ انایا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ شادی کی پہلی رات اور اسے اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کیا یہ ان کی زندگی کا آغاز تھا؟ اسے اپنے والدین کی کہی ہوئی باتیں یاد آئی۔ بیٹا، شوہر کا گھر ہے، تھوڑا صبر کرنا۔ مگر کیا یہ صبر بہت ہی طویل نہیں تھا؟ اسے ساس نے ایک ملازمہ کے ذریعے اوپر والے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا مگر اس میں کوئی خاص سجاوٹ نہیں تھی۔ یہ ایک مہمان خانے جیسا لگ رہا تھا۔ انایا نے اپنے سر سے بھاری دوپٹہ اتارا اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ آئینے میں عجیب سا لگ رہا تھا۔ میک اپ اب اترنے کو تھا اور اس کے نیچے چھپی ہوئی وہ لڑکی نظر آ رہی تھی جو اب ایک بیوی کے روپ میں اس گھر میں قید ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکا۔ انایا کو لگا شاید زوار ہوگا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے زوار نہیں بلکہ مائرہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس دودھ تھا۔ پاپا نے بھیجا ہے، مائرہ نے مسکرا کے کہا۔ پاپا کام میں مصروف ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ انایا آپی کو دے دو۔ انایا نے دودھ کا گلاس لیا اور مائرہ کو دیکھا۔ تم کیوں جاگ رہی ہو مائرہ؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیا میں یہاں رک سکتی ہوں؟ پاپا تو سو جاتے ہیں تو پھر میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ انایا کو احساس ہوا کہ اس گھر میں زوار کی سرد مہری کا سب سے زیادہ اثر مائرہ پہ پڑ رہی ہے۔ وہ بچی جسے محبت چاہیے تھی وہ تنہائی کا شکار تھی۔ آؤ بیٹھو۔ انایا نے اسے اپنے پاس بستر پہ بٹھایا۔ ہم باتیں کرتی ہیں۔ مائرہ خوش ہو گئی۔ انایا نے اسے کہانیاں سنانا شروع کی۔ مائرہ ہنستے ہنستے سو گئی۔ انایا اسے دیکھتی رہی۔ زوار باہر کام کر رہا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی نئی بیوی اس کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ یہ احساس انایا کو اندر سے کھا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ واقعی مائرہ کے لیے آئی ہے
क्या उसका मकसद सिर्फ इस बच्चे की देखभाल करना है? और ज़वार, क्या वो कभी इसे अपनी ज़िंदगी में जगह देगा? रात गुजरती जा रही थी। अनाया खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई। बाहर का मंजर बहुत ही पुरसकून था, मगर उसके अंदर एक तूफान था। उसे मालूम था कि उसका सब्र अब आजमाइश में पड़ने वाला है। अगली सुबह जब अनाया की आंख खुली तो कमरा खाली था। माहिरा शायद अपने कमरे में जा चुकी थी। अनाया ने खुद को तैयार किया और नीचे की तरफ चली गई। किचन में मुलाजमा नाश्ता बना रही थी। ज़वार साहब कहाँ हैं? अनाया ने पूछा। वो तो दफ्तर निकल गई, मुलाजमा ने जवाब दिया। माहिरा बीबी नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार हो रही है। अनाया ने गहरी सांस ली। पहला दिन और वो शौहर का सामना किए बगैर ही नाश्ता कर रही थी। उसने नाश्ता तैयार किया और माहिरा के पास चली गई। सुबह बखैर माहिरा, अनाया ने मुस्कुरा के कहा। माहिरा ने स्कूल का बैग कंधे पे लटकाया। सुबह बखैर अनाया आपी, पापा ने कहा है कि आप मुझे स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर छोड़ आएगा। अनाया का दिल उदास हो गया। वो तो माहिरा के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, मगर ज़वार हर जगह फासला रख रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे ज़वार नहीं चाहता कि वो उसकी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा बना। ठीक है, अनाया ने खामोशी से कहा। माहिरा चली गई। अनाया अब घर में अकेली थी। घर का माहौल बहुत ही बोझल था। वह किचन में काम करने लगी। उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसे काम करने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि इस घर की खामोशी को बरकरार रखने के लिए लाया गया है। शाम को जब माहिरा स्कूल से आई तो वो बहुत ही खुश थी। आपी, आज स्कूल में एक फंक्शन है, पापा को आना है, आप ही चलेंगी ना? अनाया ने ज़वार की तरफ देखा जो अभी अभी घर दाखिल हुआ था। ज़वार ने अनाया को एक नज़रअंदाज करके देखा। माहिरा, अनाया के पास घर के बहुत से काम होंगे, वो क्यों जाएगी? ज़वार ने सर्द लहजे में कहा। अनाया ने ज़वार की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। काम तो हो जाएंगे ज़वार, माहिरा की खुशी ज़्यादा अहम है, मैं चलूँगी इसके साथ। ज़वार रुका। उसने अपनी आंखें अनाया पर जमाई। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर वक्त पर तैयार रहना। वो वहाँ से चला गया। अनाया ने एक फातहाना मुस्कुराहट के साथ माहिरा को देखा। वो जानती थी कि ये उसका पहला कदम था। ज़वार की सर्द मेहरी के खिलाफ उसे माहिरा की मोहब्बत जीतनी थी और ज़वार के दिल की इस ठंडक को ख़त्म करना था। स्कूल फंक्शन की सुबह थी। घर में एक अलग सी हलचल थी। माहिरा जो पिछले 2 दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी, आज सुबह सवेरे ही जाग गई थी। अनाया उसके कमरे में मौजूद थी, उसे तैयार कर रही थी। माहिरा ने सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी थी और उसके बालों में 2 सफ़ेद रिबन बांधे जा रहे थे। अनाया ने माहिरा के बाल संवारते हुए आईने में देखा। माहिरा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन इस खुशी के पीछे खालीपन भी था। वो जानती थी कि आज स्कूल में हर बच्चा अपने वालिदैन के साथ होगा और माहिरा के लिए ये दिन हमेशा के लिए अधूरा रहा था। आपी, क्या पापा वाकई आ रहे हैं? माहिरा ने अचानक पूछा। अनाया ने उसे प्यार से कंधे से पकड़ा। हाँ माहिरा, पापा ने वादा किया है, वह ज़रूर आएंगी। लेकिन पापा तो कभी फंक्शन में नहीं आती। माहिरा का लहजा धीमा हो गया। गुज़श्ता साल भी वो नहीं आई थी, बस ड्राइवर अंकल आए थे। अनाया का दिल भर आया। उसने ज़वार के बारे में सोचा, जो शायद अब भी अपने कमरे में तैयार होने में वक्त लगा रहा होगा। वो कितना पत्थर का इंसान था कि अपने बच्चे की छोटी सी खुशी को भी एक बोझ समझता था। इस बार पापा आएंगे, मैंने कहा है ना, और मैं भी तो हूँ। ठीक है, अनाया ने उसे तसल्ली दी। माहिरा ने अनाया की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आप बहुत ही अच्छी हैं। आप अगर मेरी मम्मा होती तो कितना अच्छा होता। अनाया के हाथ रुक गए। उसने माहिरा के बालों में पिन लगाई और उसके सामने बैठ गई। माहिरा, आप मुझे क्या कहना चाहती है? माहिरा ने शर्मिंदगी से नज़र झुका ली। कुछ नहीं, बस स्कूल में सब मम्मा के बारे में बात करती हैं, मुझे भी किसी को मम्मा कहना है। अनाया ने गहरा सांस लिया। ये मौका था। वो उसे इस घर में किसी आया की हैसियत से नहीं, बल्कि उसकी अपनेपन की हैसियत से रहना चाहती थी। माहिरा, अनाया ने नरमी से कहा, आप मुझे अनाया भी कहती हैं और ये ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे मम्मा कहना चाहें तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। मैं आपकी मम्मा बनकर ही इस घर में आई हूँ। आपके पापा को भी बताएंगे कि आपसे आप मुझे मम्मा कहेंगी। माहिरा की आंखों में एक चमक आ गई। सच में? क्या मैं पापा के सामने भी मम्मा कह सकती हूँ? जी, क्यों नहीं? अनाया ने मुस्कुरा के कहा। नीचे लाउंज में ज़वार तैयार खड़ा था। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था। वो हमेशा की तरह बहुत ही पुरवकार और संजीदा लग रहा था। अनाया और माहिरा नीचे आई। ज़वार ने एक नज़र अपनी घड़ी पे डाली। तुम लोग 10 मिनट लेट हो, उसने बगैर देखे कहा। माजरत, माहिरा को तैयार करने में थोड़ी देर हो गई।
अनाया ने तहम्मुल से जवाब दिया। चलो गाड़ी तैयार है। रास्ते भर गाड़ी में कोई बात नहीं हुई। जवार ड्राइविंग कर रहा था और अनाया पिछली सीट पर मायरा के साथ बैठी थी। मायरा अनाया का हाथ पकड़ के बैठी थी। जवार ने आईने में ये मंजर देखा, मगर उसने कोई तबसरा नहीं किया। उसे ये बात नागवार तो नहीं लगी, लेकिन वो इससे लाताल्लुक रहने की कोशिश कर रहा था। स्कूल पहुंचकर हंजूम बहुत ज़्यादा था। हर तरफ वालिदैन अपने बच्चों के साथ थे। मायरा के स्कूल के दोस्त उसे देखकर दौड़े चले आए। एक लड़की ने आगे बढ़ के मायरा का हाथ पकड़ा और पूछा, मायरा ये कौन है? क्या ये तुम्हारी मम्मा है? मायरा ने अनाया की तरफ देखा। वो थोड़ी हिचकिचाई, फिर अनाया का हाथ मजबूती से थाम लिया। हाँ, ये मेरी मम्मा है। अनाया को लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़क रहा हो। उसने मायरा को देखा जो फख्र से ये कह रही थी। मायरा के दोस्त ने मुस्कुराकर अनाया को हेलो कहा। जवार जो चंद कदम पीछे खड़ा था ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार नुमाया हुए, फिर उसने अपनी नज़रें हटा ली। वो इस लम्हे को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क न पड़ता हो। फंक्शन शुरू हुआ। बच्चे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। जवार खामोशी से कुर्सी पर बैठा था। अनाया उसके साथ बैठी थी। फंक्शन के दौरान कुछ वालिदैन आपस में बातें कर रहे थे। एक खातून ने अनाया से पूछा, आप मायरा की वालदा हैं? अनाया ने सर हिलाया। जी, बहुत ही प्यारी बच्ची है, खातून ने कहा। जवार साहब बहुत ही खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसे समझदार जीवन साथी मिली। मायरा को आपकी ज़रूरत थी। जवार जो पास से बैठा था उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखा। उसे ये तारीफ़ें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि अनाया बहुत ही तेज़ी से उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह बना रही है और ये जगह उसके सुकून में खलल डाल रही है। फंक्शन ख़त्म हुआ तो सब अपने घरों को लौट गए। कार पार्किंग में जाती हुई मायरा बहुत ही पुरजोश थी। मामा, आपको कैसा लगा? मैंने अच्छा डांस किया ना? जवार गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। जैसे ही मायरा ने मामा कहा, जवार रुक गया। उसने मायरा को घूर के देखा। मायरा, तुम इसे ये क्या कह रही हो? मायरा डर गई। उसका हाथ अनाया के हाथ से छूट गया। अनाया ने फ़ौरन मायरा को अपने पीछे कर लिया और जवार की आंखों में आंखें डाल के कहा, मैंने इसे कहा है कि मुझे मम्मा कहे। मायरा को एक माँ की ज़रूरत है जवार, और मैं इस घर में सिर्फ एक नाम के लिए नहीं आई। जवार की आंखों में गुस्सा था। तुम अपनी हद में रहो अनाया। तुम सिर्फ मेरी बेटी की देखभाल के लिए आई हो, उसकी माँ बनने के लिए नहीं। मेरी बीवी होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम इसके जज्बात के साथ खेलो। अनाया का दिल डूब गया, मगर वो खामोश नहीं रही। मैं खेल नहीं रही हूँ, मैं इसे मोहब्बत दे रही हूँ जो आप शायद नहीं दे पा रहे। मायरा की खुशी इसी में है कि वो किसी को मम्मा कहे। आप उसे इस खुशी से क्यों महरूम करना चाहती हैं? सिर्फ इसलिए कि आप खुद को दुख से बाहर नहीं निकाल पा रहे। जवार को शायद ऐसी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बैठ गया। गाड़ी में वापसी का सफ़र बहुत ही भारी था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मायरा खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। अनाया के दिल में एक कसक सी थी। उसे लगा कि उसने शायद ज़्यादा बोल दिया, लेकिन उसे अपनी खुददारी का भी ख्याल था। घर पहुंचकर जवार सीधा अपने कमरे में चला गया। अनाया ने मायरा को अपने कमरे में छोड़ा और खुद किचन में चली गई। उसे बहुत ही प्यास लगी थी। पानी पीते हुए उसने सोचा कि जवार को अपनी पहली बीवी की यादों से इतनी अकीदत क्यों है कि वो किसी और को वो मकाम देने को तैयार नहीं। क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ ज़िद? रात का वक्त था। अनाया ने सोचा कि वो जवार से बात करेगी। वो जानती थी कि ये रवैया तवील अरसे तक नहीं चल सकता। उसने एक गिलास दूध लिया और जवार के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर जवार खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर उसकी पहली बीवी की थी। अनाया वहीं रुक गई। वो अंदर नहीं जा सकी। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी दीवार से टकरा रही है। जवार के दिल में उसके लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा। उसे लगा जैसे वो इस तस्वीर के साए में जी रही हो। वो वापस मुड़ने लगी कि अचानक उसका पाँव फर्श पे पड़ी किसी चीज़ से टकराया। आवाज़ सुन के जवार मुड़ा। उसने अनाया को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बौखलाहट थी। उसने जल्दी से तस्वीर को अलमारी में छुपा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवार ने सख्ती से पूछा। अनाया ने दूध का गिलास मेज़ पे रखा। मैं बस आपके लिए दूध लाई थी। आपने खाना नहीं खाया था तो सोचा शायद। मुझे भूख नहीं थी। तुम जा सकती हो। उसने बात काट दी। अनाया ने गहरी सांस ली। जवार, कब तक आप खुद को इस कमरे में इन यादों में कैद रखोगी? मैं आपकी बीवी हूँ। क्या आप मुझसे बात नहीं कर सकती? क्या हम एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? जवार अनाया की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा सख्त था। नॉर्मल ज़िंदगी? तुम इसे नॉर्मल कहती हो? तुम इस घर में आई हो तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये घर एक कब्रिस्तान जैसा है।
मैंने तुम्हें सहूलत के लिए रखा है, अनाया जज्बाती होने के लिए नहीं। तुमने मायरा को मम्मा बनने का कहा, ये तुम्हारी गलती थी, उसे दोबारा मत दोहराना। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत जालिम हैं। आप मायरा की खुशी भी नहीं देख सकते। वो बच्ची है, उसे मोहब्बत चाहिए, और मैं उसे वो मोहब्बत दे रही हूँ जो आप नहीं दे पा रहे। जवार खामोश रहा। उसने अनाया को देखा, जिसकी आंखों में दर्द था, मगर उसके साथ साथ एक अज़म भी था। उसने अनाया को वहाँ से जाने का इशारा किया। अनाया मुड़ी और बाहर निकल आई। उस रात अनाया सो नहीं सकी। उसे लगा कि वो इस घर में एक ऐसी कैदी है जिसके पास तमाम आसाइशें तो हैं, मगर प्यार का एक कतरा भी नहीं। उसने तय कर लिया कि वो हिम्मत नहीं हारेगी, चाहे जवार कितना ही सख्त क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना रहे, वो मायरा को तन्हा नहीं छोड़ेगी। मायरा उसकी ताकत बनेगी, और फिर यही ताकत एक दिन जवार के दिल का दरवाज़ा भी खोलेगी। अगले कुछ दिन बहुत ही खामोशी से गुजरे। जवार ने अनाया से बात करना तकरीबन छोड़ दिया था। वो सुबह जल्दी जाता और रात को देर से आता। मायरा अब अनाया से छुप छुप कर मम्मा कहती और अनाया उसे प्यार से गले लगा लेती। ये एक ऐसी खफिया खुशी थी जिसका सिर्फ इन दोनों को इल्म था। एक दिन मायरा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसे तेज़ बुखार हो गया। अनाया ने उसे पूरी रात संभाला। वो उसके सर पर ठंडी पट्टियाँ रखती रही, उसे दुआएं देती रही। सुबह जब बुखार कुछ कम हुआ तो मायरा ने अनाया का हाथ पकड़ा। मम्मा, पापा कहाँ हैं? पापा काम पर गए हैं मायरा। अनाया ने उसके माथे को बोसा दिया। मैं हूँ ना तुम्हारे पास। इसी दौरान जवार कमरे में दाखिल हुआ। वो शायद बहुत परेशान था, क्योंकि उसने काम के दरमियान ही फ़ोन किया था और उसे मायरा की बीमारी का पता चला था। उसने मायरा को देखा जो अनाया के गले लगकर सो रही थी। उसका दिल एक पल के लिए नर्म हुआ, मगर फिर उसने अनाया को देखा। तुम्हें बताना चाहिए था कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जवार ने धीमी मगर रूखे लहजे में कहा। अनाया उठी। वो बहुत ही थकी हुई थी। उसकी आंखें नींद से बोझल थीं। मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश की थी, आपका नंबर मसरूफ़ था। जवार मायरा के पास बैठा। उसने मायरा का हाथ थामा। वो ठीक हो जाएगी, तुम जाके आराम करो। अनाया ने सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। वो किचन में गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। उसे बहुत ही कमज़ोरी हो रही थी। काम करते करते उसे चक्कर आने लगे। वो संभलने की कोशिश करती रही, मगर सब धुंधला गया। वो फर्श पर गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। ये जवार था। उसकी आंखों में एक ऐसी तशवीश थी जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखी थी। अनाया, अनाया क्या हुआ? जवार ने उसे बाजू में उठाकर सोफे पर लिटाया। अनाया ने अपनी आंखें खोली। मैं ठीक हूँ, बस नींद पूरी नहीं हुई। जवार ने उसके माथे पे हाथ रखा। वो बहुत ही गर्म था। तुम खुद बीमार हो और मायरा को संभाल रही थी, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की। मायरा को मेरी ज़रूरत थी। जवार खामोश हो गया। उसने पानी का गिलास अनाया के होठों से लगाया। तुम्हारी अपनी भी तो कोई ज़रूरत है अनाया। अनाया ने उसे देखा। ये पहला मौका था कि जवार ने इसकी परवाह की थी। उसका दिल खुशी से भर गया। जवार ने अनाया को उठाया और उसके कमरे तक ले गया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसे चादर उड़ा दी। सो जाओ, उसने हुक्म दिया। अनाया ने बंद आंखों से कहा, शुक्रिया जवार। जवार वहाँ से जाने के बजाय कुछ देर बिस्तर के किनारे बैठा रहा। वो अनाया के चेहरे को देख रहा था, जो नींद में भी कितनी मासूम लग रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। उसने अनाया को एक बोझ समझा था, मगर ये लड़की तो उसके घर की दीवारों को अपनी मोहब्बत से जोड़ रही थी। अनाया को जब होश आया तो बाहर सूरज ढल रहा था। उसे याद आया कि वो जवार की बातों में थी। क्या वो कोई ख्वाब था या हकीकत? वो उठी और नीचे चली गई। घर में सुकून था। मायरा अपने कमरे में पढ़ रही थी। अनाया ने किचन में जाकर कुछ हल्का फुल्का खाना तैयार किया और मायरा के लिए जूस निकाला। वो जब मायरा के कमरे में गई तो देखा कि जवार वहाँ बैठा मायरा को होमवर्क करवा रहा था। ये मंजर देखकर अनाया रुक गई। जवार और मायरा दोनों बहुत ही पुरसुकून लग रही थी। जवार के चेहरे पर वो तल्खी नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। आपी, मेरा मतलब है मम्मा, मायरा ने अनाया को देखकर पुकारा। पापा मुझे मैथ समझा रही हैं। जवार ने अनाया की तरफ देखा। वो कुछ बोला नहीं। अनाया ने आगे बढ़ के जूस का गिलास टेबल पे रखा। ये लो मायरा, जूस पी लो। जवार ने किताब बंद की। तुम अब कैसी हो? मैं बेहतर हूँ। जवार उठ खड़ा हुआ। मायरा का काम ख़त्म हो गया है, अब इसे सो जाना चाहिए, कल स्कूल है। जवार कमरे से निकल गया। अनाया मायरा के पास बैठ गई। मायरा ने उसका हाथ थामा। पापा आज बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं। अनाया ने मुस्कुराया। अच्छा है मायरा, वो बस थोड़े से परेशान रहते हैं। खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर खामोशी थी। अनाया खाना खा रही थी। जवार अखबार पढ़ रहा था।
अचानक जवार ने अखबार नीचे रखा। अनाया, मैंने सोचा है कि हम हफ्ते के आखिर पर कहीं बाहर जाएंगे। मायरा को पार्क जाना है। अनाया को यकीन नहीं आया कि वो क्या सुन रही है। जवार, जो घर से निकलने भी से भी कुतराता था, वो बाहर जाने की बातें कर रहा था। जी ज़रूर। मायरा बहुत ही खुश होगी। जवार ने उसे देखा। ये मायरा के लिए है अनाया, सिर्फ उसके लिए। तुम भी साथ चलोगी क्योंकि मायरा तुम्हें साथ ले जाना चाहती है। अनाया ने मुस्कुरा के सर हिलाया। ठीक है। हफ्ते का दिन आ गया। वो एक खूबसूरत पार्क में गई। मायरा झूले झूल रही थी। अनाया और जवार एक बेंच पर बैठी थी। माहौल बहुत ही पुरसकून था। परिंदों की चहचहाट, ठंडी हवा और दूर बच्चों का शोर। तुम्हें मालूम है, जवार ने अचानक बात शुरू की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा किसी के साथ ऐसे बैठ सकूंगा। अनाया ने उसे गौर से देखा। क्यों? जिंदगी तो चलती रहती है जवार, आपको रुकना नहीं चाहिए। जवार ने ज़मीन को देखा। जिंदगी तो चलती है मगर मेरा दिल कहीं रुक गया था। मुझे लगा कि अगर मैं खुश हुआ तो मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, मेरी पहली बीवी को। अनाया ने नरमी से कहा। खुशी किसी को धोखा देना नहीं होता जवार, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। वो तो चली गई मगर आप यहाँ हैं, आपकी बेटी यहाँ है, आपको अपने लिए जीना होगा। जवार खामोश रहा। उसने अनाया को देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या कभी तुम मुझसे नफरत करोगी अगर मैं कभी पूरी तरह तुम्हारा न बन सका? अनाया ने उसके हाथ पे हाथ रखा। मैं नफरत नहीं करूंगी, मैं इंतज़ार करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके अंदर एक अच्छा इंसान है जो सिर्फ डरा हुआ है। जवार के दिल में पहली बार अनाया के लिए एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। उसे लगा कि ये लड़की वाकई उसके लिए बनी है। उसका सब्र, उसकी समझबूझ, उसकी मोहब्बत, सब कुछ कितना सच्चा था। शाम को जब वो वापस आए तो मायरा गाड़ी में ही सो गई थी। जवार ने मायरा को उठाया और कमरे में ले गया। अनाया पीछे पीछे थी। जब जवार ने मायरा को बेड पे लिटाया तो वो अनाया की तरफ मुड़ा। आज का दिन अच्छा था, शुक्रिया अनाया। अनाया ने मुस्कुरा के कहा। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, यह हमारा दिन था। वो अपने कमरे में चली गई। उसे एहसास हुआ कि वो जीत रही है। जवार के दिल की बर्फ़ पिघल रही है। ये एक लंबा सफ़र था मगर अब उसे अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी। जवार अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट नहीं जलाई। वो खामोशी से खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। बाहर चांदनी रात थी। बाग में लगे दरख्तों के साए जमीन पर रक्स कर रहे थे। उसने अपना हाथ खिड़की के फ्रेम पे रखा। आज का दिन उसकी ज़िंदगी के पिछले कई सालों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अनाया के बारे में सोच रहा था। वो लड़की जो इस घर में एक मुआहदे के तहत आई थी, वो कब और कैसे उस घर का हिस्सा बन गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी के साथ इतना वक्त गुजारेगा, हंसेगा और उसे शुक्रिया कहेगा। जवार के दिल में एक अजीब सी कशिश थी। एक तरफ वो पुरानी यादें थी, वो खौफ था, और दूसरी तरफ एक नया एहसास था जो अनाया की मौजूदगी से पैदा हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी कमीज के बटन खोले। आज उसके दिल का बोझ कुछ कम था मगर ये बोझ मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ अनाया अपने कमरे में थी। वो बिस्तर पर बैठी थी मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने हाथ देखे। आज का दिन उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। जवार का वो रवैया, वो शुक्रिया का जुमला, ये सब उसके लिए बहुत ही कीमती था। उसने तकिए को गले लगाया। उसे मालूम था कि जवार अभी बहुत ही दूर है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो जो रास्ता तय करके यहाँ तक आई है वो बहुत ही मुश्किल था। अब वो बहुत ही हिम्मत नहीं आ सकती थी। अगली सुबह जब अनाया की आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से छन कर फर्श पे आ रही थी। वो उठकर किचन में गई। मायरा पहले ही जाग चुकी थी और लाउंज में अपने खिलौनों से खेल रही थी। मम्मा, मायरा ने अनाया को देखते ही खुशी से आवाज़ दी। अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मायरा का मम्मा कहना अब रोज़ का मामूल बन चुका था, लेकिन जवार के सामने वो अभी भी उसे आप ही कहती थी। अनाया ने उसे उठाकर गले लगा लिया। मेरी शहजादी, नाश्ता कर लो। नहीं, पापा अभी नहीं आए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उसी लम्हे जवार सीढ़ियों से नीचे उतरा। वो मामूल के मुताबिक ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसकी नज़रें मायरा और अनाया पे पड़ी। अनाया ने मायरा को नीचे उतारा और नाश्ता लगाने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। आज स्कूल के लिए लेट तो नहीं हो रही? जवार ने मायरा से पूछा। नहीं पापा, मम्मा ने मुझे पहले ही तैयार कर दिया है, मायरा ने फ़ख्र से कहा। अनाया किचन के दरवाजे पे रुक गई। उसे लगा कि जवार का रद्द-ए-अमल शायद सख्त होगा, लेकिन जवार ने सिर्फ एक बार मायरा को देखा और फिर अखबार उठा लिया। उसने कोई इतराज़ नहीं किया। ये एक छोटी सी जीत थी। अनाया ने चाय का कप जवार के सामने रखा। आज मैं मायरा को स्कूल छोड़ दूंगी, अगर आप इजाज़त दे तो।
अनाया ने धीमी आवाज में कहा। जवार ने चाय का कप उठाया। ठीक है, ड्राइवर से कह देना वो तुम्हें छोड़ आएगा। मैं खुद ड्राइव कर सकती हूँ जवार। जवार ने सर उठाया और अनाया को देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत थी, फिर उसने सर हिलाया। जैसे तुम्हारी मर्जी, बस ख्याल रखना। नाश्ते के दौरान कोई खास गुफ्तगू नहीं हुई। जवार अपने काम में मगन था और अनाया मायरा को खिलाने में। ये खामोशी पहले जैसी तकलीफदेह नहीं थी, इसमें एक तरह का सुकून था, एक ऐसी फिजा जिसमें दो इंसान एक ही छत तले रहते हुए भी अपने ख्यालात में गुम थे। मायरा को स्कूल छोड़ने के बाद अनाया घर वापस आई। घर अब उसे अपना लगने लगा था। उसने किचन की अलमारियां तरतीब दी, पर्दे बदले और एक ऐसी जगह बनाई जहां मायरा के खिलौने रखे जा सकें। वो घर को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मस्कन बना रही थी। दोपहर के खाने के वक्त जवार नहीं आया। अनाया ने उसके लिए खाना निकाल के रखा और फिर मायरा के आने का इंतज़ार करने लगी। जब मायरा आई तो वो बहुत ही पुरजोर थी। मम्मा, आज हमें एक प्रोजेक्ट मिला है। हमें घर के पौधों पे लिखना है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? अनाया ने उसे गोद में उठाया। ज़रूर बेटा, चलो हम बाग में चलते हैं। वो बाग में गई। मायरा पौधों को देखने लगी। अनाया उसे हर पौधे का नाम बता रही थी। मायरा बहुत ही ज़हीन बच्ची थी। वो अनाया के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि उसे अब लगता था कि अनाया हमेशा से उसके साथ थी। शाम को जब जवार घर आया तो वो थका हुआ लग रहा था। उसने कोट उतारा और सोफे पर बैठ गया। अनाया ने पानी का गिलास उसे पेश किया। आज काम ज़्यादा था? अनाया ने पूछा। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने थे। जवार ने आंखें बंद कर ली। मायरा कहाँ है? वो अपने कमरे में होमवर्क कर रही है। आज उसने पौधों पे प्रोजेक्ट बनाया। बहुत ही मेहनत की उसने। जवार ने आंखें खोली। उसने अनाया को देखा। तुम उसे बहुत ही वक्त दे रही हो। शुक्रिया। अनाया ने मुस्कुरा के सर झुका लिया। ये मेरा फ़र्ज़ है जवार, और वैसे भी मायरा मेरी भी तो बेटी है। जवार खामोश हो गया। उसने अनाया के चेहरे पर एक गहरी नज़र डाली। उसे महसूस हुआ है कि अनाया के आने से उसके घर में वो फालीपन कम हो रहा है जो बरसों से था। उसने कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोश रहा। उसे अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे थे। रात को अनाया अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मायरा खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक ड्राइंग बुक पकड़ रखी थी। मम्मा, मैं सो नहीं पा रही। क्या आप मुझे कोई कहानी सुना सकती हैं? मायरा ने मासूमियत से कहा। अनाया ने उसे अंदर बुलाया। आओ बैठो। मायरा उसके पास बिस्तर पे बैठ गई। अनाया ने उसे कहानियाँ सुनाना शुरू की। मायरा ने ड्राइंग बुक खोली। उसमें उसने 3 लोगों की तस्वीरें बनाई थी। एक लंबा शख्स, एक औरत और एक छोटी बच्ची। ये कौन है? अनाया ने पूछा। ये पापा हैं, ये आप हैं और ये मैं हूँ। मायरा ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। हम एक फैमिली हैं। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मायरा की बनाई हुई इस छोटी सी तस्वीर ने उसकी तमाम थकान मिटा दी थी। हाँ मायरा, हम एक फैमिली है। मामा, क्या पापा भी हमें फैमिली मानती हैं? अनाया खामोश रही। वो इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। वो मानेंगी मायरा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। मायरा कहानी सुनते सुनते सो गई। अनाया उसे देखती रही। उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी जगह मायरा के ज़रिए ही बनेगी। मायरा वो पुल है जो उसे और जवार को जोड़ सकता है। अगले चंद दिन इसी तरह मामूल के मुताबिक गुजरे। जवार और अनाया के दरमियान फासला कम तो नहीं हुए थे, लेकिन वो ख़त्म भी नहीं हुए थे। वो एक दूसरे के साथ शाइस्तगी से पेश आते थे। मायरा के स्कूल के फंक्शन के बाद से जवार अनाया के कानों में मदाखलत नहीं करता था। वो देखता था कि अनाया कैसे घर संभाल रही है, कैसे मायरा की पढ़ाई में मदद कर रही है और कैसे हर काम को सलीके से कर रही है। एक इतवार की सुबह जवार ने अनाया से कहा, आज शाम हम ग्रोसरी के लिए चलेंगे। मायरा को भी साथ ले चलेंगे। अनाया को ये सुनकर हैरत हुई। जवार आमतौर पर यह काम मुलाजमों से घबराता था। ग्रोसरी, ठीक है। शाम को जब वो मार्केट पहुंचे तो वो बहुत ही रश था। मायरा खुशी से इधर उधर भाग रही थी। जवार ने उसे हाथ से थामे रखा। अनाया इसके साथ चल रही थी। लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो एक आम मियाँ बीवी की तरह लग रही थी। एक दुकान पर अनाया कुछ अशिया देख रही थी। जवार उसके पीछे खड़ा था। तुम ये सब क्यों खरीद रही हो? क्या घर में ख़त्म हो गया है? जवार ने पूछा। नहीं, बस मायरा को कुछ खास पसंद है तो सोचा ले लूँ। जवार ने कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि अनाया कितनी कफालत शायरी से चीज़ें मुंतखब कर रही थी। वो फजूल खर्च नहीं थी। वो घर की ज़रूरतों को समझती थी। उसने महसूस किया कि अनाया इस घर को अपना समझती है। उसने एक साबुन उठाया और बास्केट में डाल दिया। ये वाला? अनाया ने हैरत से देखा। जी ये ठीक है। वो ख़रीदारी करके बाहर निकले। जवार ने सामान गाड़ी की डिक्की में रखा। आज का दिन अच्छा रहा। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। हाँ, अनाया ने कहा।
रास्ते में मायरा सो गई थी। जवार ने गाड़ी आहिस्ता चलाई। अचानक उसने पूछा, तुमने कभी सोचा था कि तुम यहाँ रहोगी इस तरह? अनाया ने खिड़की से बाहर देखा। सच कहो तो नहीं जवार, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मेरी मंजिल यही थी। जवार खामोश रहा। उसने गाड़ी को एक साइड पे रोका। वो कुछ देर बैठे रहे खामोशी में। फिर उसने अनाया की तरफ देखा। अनाया, मैं जानता हूँ कि मैं मुश्किल इंसान हूँ। मैंने तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दी जिसकी तुम हकदार हो। मैं अभी माजी के शाये में जी रहा हूँ, लेकिन लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। जवार ने पहली बार अपने जज्बात का एतराफ़ किया था। उसने जवार की तरफ देखा। जवार की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैं जानती हूँ जवार, और मैं सब्र करूँगी। मैं आपके लिए रुक सकती हूँ। जवार ने कुछ कहना चाहा मगर फिर रुक गया। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस दिन के बाद से जवार के रवैये में एक तब्दीली आई। वो बनाए से ज़्यादा बात करने लगा था। वो मायरा के साथ भी ज़्यादा वक्त गुजारने लगा था। वो अब घर में एक अजनबी नहीं बल्कि एक शौहर की तरह रहने लगा था। अनाया को लगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता जवार के दिल की दीवारों को गिरा रही है। ये काम दिनों में नहीं महीनों में होगा, और वो इसके लिए तैयार थी। उसने अपनी ज़िंदगी को मायरा और जवार के नाम कर दिया था। एक सुबह अनाया मायरा को स्कूल छोड़ के आई तो उसे घर के दरवाजे पर कुछ क्वेटर मिला। उसने उसे उठाया और अंदर आ गई। लिफाफा खोला तो उसमें जवार की पुरानी तस्वीरें थीं जो शायद किसी ने उसे भिजवाई थी। जवार की पहली बीवी के साथ। वो तस्वीरें पुरानी थी, धुंधली थी। अनाया का दिल एक लम्हे के लिए बैठा। क्या ये माजी फिर से आ रहा था? उसने तस्वीर को जल्दी से वापस लिफाफे में डाल दिया। उसने फैसला किया कि वो ये जवार को नहीं दिखाएगी। वो नहीं चाहती थी कि जवार का सुकून खराब हो। वो इन तस्वीरों को संभाल कर अलमारी में रख देगी। वो किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। उसका दिल अभी भी कांप रहा था। उसे मालूम था कि जवार की ज़िंदगी में उसके माजी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें वो कभी मिटा नहीं सकता, और वो इनके साथ लड़ना नहीं चाहती थी। वो बस जवार के हाल को संभालना चाहती थी। वो जानती थी कि ये लड़ाई खामोशी होगी। उसे जवार के दिल में अपनी जगह बनानी है, और वो उसे पूरी ईमानदारी से करेगी। उसे जोया जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस अनाया बन के रहना है। वही अनाया जो सब्र कर सकती है, जो मोहब्बत कर सकती है, और जो इंतज़ार कर सकती है। कुछ दिन बाद घर में एक छोटी सी दावत का एहतमाम किया गया। जवार की बहन और उसके बच्चे आ रहे थे। अनाया ने पूरे घर को सजाया। वो चाहती थी कि सब कुछ बेहतरीन हो। जवार की बहन सारा जब आई तो उसने अनाया को देखकर मुस्कुराया। तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो अनाया। अनाया ने शुक्रिया अदा किया। वो मेहमानों की खिदमत में मसरूफ़ थी। सारा ने जवार से पूछा, जवार, अनाया तो बहुत ही सलीकेमंद है, तुमने इसे पहले क्यों नहीं बताया? जवार ने अनाया को देखा। वो उस वक्त मायरा को पानी पिला रही थी। हाँ, वो बहुत ही मेहनती है, सारा ने हंसकर कहा। सिर्फ मेहनती नहीं, वो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आई है। मैं देख सकती हूँ। जवार खामोश रहा। क्या वाकई कि वो सुकून लेकर आई थी? जवार ने महसूस किया कि हाँ। उसके घर में अब वो चिड़चिड़ापन नहीं था। उसने अनाया को देखा जो सारा के बच्चों के साथ हंस रही थी। वो कितनी खुश लग रही थी। शाम को जब मेहमान चले गए तो अनाया थक कर सोफे पर बैठ गई। जवार पास आया और उसके सामने बैठ गया। तुमने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया अनाया। अनाया ने मुस्कुरा के कहा, शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा है, जवार ने धीमी आवाज़ में कहा, हमें मायरा के लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी करनी चाहिए उसके दोस्तों के साथ। अनाया की आंखों में चमक आ गई। वाकई ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मायरा बहुत ही खुश होगी। तुम तो तैयारी करो, बजट की फिक्र मत करो। अनाया खुश थी। वो जवार के साथ मिलकर इस पार्टी की तैयारियां करने लगी। मायरा के लिए ये ख्वाब जैसा था। वो दोनों मिलकर गार्स बना रही थी, केक का ऑर्डर दे रही थी। इसी दौरान जवार और अनाया के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती कायम हो गई। वो अब प्रोजेक्ट पर बात करते, वो मायरा की शरारतों पर हंसती थी। वो एक दूसरे को समझने लगे थे। जवार को मालूम होने लगा कि अनाया कौन सी चीज़ पसंद है, और अनाया को मालूम होने लगा कि जवार को कब अकेले रहना पसंद है। वो अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे थे। पार्टी के दिन घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गुब्बारे, रंग और मायरा की हंसी। उसके दोस्त आए थे, वो खेल रहे थे। जवार एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। उसके पास अनाया आई। तुम देख रही हो मायरा कितनी खुश है? ये सब तुम्हारी वजह से है। जवार ने अनाया की तरफ देखा। नहीं, ये तुम्हारी वजह से है। तुमने इस घर में खुशियाँ वापस लाई हैं। उसी लम्हे मौसीकी बज रही थी। बच्चे खेल रहे थे। जवार ने अनाया का हाथ पकड़ा। शुक्रिया अनाया, मेरे लिए और मायरा के लिए। अनाया का दिल जोर से धड़का। उसका हाथ जवार के हाथों में था। ये एक ऐसा लिमिस था जिसमें कोई दुख नहीं था, कोई बोझ नहीं था, सिर्फ एक अच्छा एहसास था। एक ऐसा एहसास जिसे वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती थी।
رات کو جب پارٹی ختم ہو گئی اور مہمان چلے گئے، گھر میں خاموشی تھی۔ مائرہ تھک کر سو گئی تھی۔ انایا کچن صاف کر رہی تھی۔ زوار اندر آیا اور اسے کچن کاؤنٹر پہ کام کرتے دیکھا۔ وہ عرصے سے پیچھے آیا۔ انایا کے ہاتھ رکے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم بہت ہی تھک گئی ہو، زوار نے دھیمی آواز میں کہا۔ انایا نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ زوار بہت ہی قریب تھا، اتنے قریب کہ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں زوار۔ زوار نے اپنا ہاتھ انایا کے چہرے پہ رکھا۔ اس کا لمس بہت ہی نرم تھا۔ انایا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ انایا، زوار نے اس کا نام لیا۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا، یہ ایک پکار تھی۔ انایا نے آنکھیں کھولی۔ جی، تم بہت ہی اچھی ہو۔ کاش یہ میں بات پہلے سمجھ سکتا۔ انایا نے کچھ نہیں کہا، وہ بس زوار کو دیکھتی رہی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن زوار کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ زوار نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس رات اس گھر میں کوئی طوفان نہیں تھا، کوئی ماضی نہیں تھا، صرف حال تھا، وہ حال جو انایا نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ مگر اگلے ہی دن ایک نئی الجھن سامنے آئی۔ مائرہ کے اسکول سے فون آیا۔ جی، کیا ہوا؟ انایا نے پوچھا۔ مائرہ گر گئی ہے، اسے چوٹ لگی ہے، آپ کو آنا ہوگا۔ انایا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً زوار کے دفتر پہنچ گئی۔ زوار بھی بہت ہی پریشان ہو گیا۔ وہ دونوں ہسپتال پہنچے۔ مائرہ کا سر پھٹ گیا تھا، وہ درد سے رو رہی تھی۔ انایا نے اسے گلے لگا لیا۔ ماما، بہت درد ہو رہا ہے۔ مائرہ رو رہی تھی۔ انایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی بیٹا، میں ہوں نا۔ زوار باہر کھڑا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی پھر سے خطرے میں ہے۔ کیا وہ مائرہ کو کھو دے گا؟ ڈاکٹر باہر آیا۔ اسے ٹانکے لگی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ انایا اور زوار نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ہسپتال سے گھر آئے۔ مائرہ اب سو رہی تھی۔ انایا اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ زوار کمرے کے دروازے پہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ انایا کتنی مضبوط ہے۔ وہ ہر دکھ، ہر تکلیف میں مائرہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دل میں انایا کے لیے ایک نئی جگہ بنائی تھی۔ انایا، تم جا کے آرام کرو، میں اس کے پاس بیٹھا ہوں۔ انایا نے زوار کی طرف دیکھا۔ آپ جا کر سو جائے زوار، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، تم تھک گئی ہو، آج تم نے بہت کچھ سہ لیا۔ انایا نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ زوار اب بدل رہا ہے۔ اس کا دل اب انایا کے لیے نرم ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی کانٹے، کبھی پھول، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا سفر جو شاید ایک سمجھوتے کے طور پر شروع ہوا تھا، اب محبت کے رنگوں میں رنگ رہا ہے۔ وہ ایک بیوی تھی، ایک ماں تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنی ہمت سے ایک بکھرے ہوئے گھر کو جوڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسے خواب میں مائرہ کی ہنسی سنائی دی اور زوار کی وہ مسکراہٹ جو اب صرف اس کے لیے تھی۔ اگلے کچھ دن مائرہ کی دیکھ بھال میں گزرے۔ انایا نے اس کا اس طرح ہر طرح سے خیال رکھا۔ وہ اسے وقت پر دوا دیتی، اس کے لیے مزیدار کھانے بناتی اور اسے کہانیاں سناتی۔ زوار بھی اب گھر جلدی آ جاتا۔ وہ مائرہ کے پاس بیٹھتا، اس سے باتیں کرتا۔ ایک شام مائرہ نے کہا، پاپا، کیا مما ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی؟ زوار نے انایا کی طرف دیکھا جو وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہاں مائرہ، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ انایا کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک وعدہ تھا۔ زندگی اب ایک نئے موڑ پر تھی۔ کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی ماضی کا ڈر نہیں، صرف ایک پرسکون زندگی جس میں محبت تھی، سمجھداری تھی اور ایک چھوٹی سی بچی کی ہنسی تھی۔ انایا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ موسم بدل رہا تھا، خزاں ختم ہو رہی تھی اور بہار آ رہی تھی۔ شاید اس کی زندگی میں بھی اب بہار آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب بہت سے دن باقی ہے، بہت سی خوشیاں، بہت سے دکھ، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ زوار، مائرہ اور اس کا اپنا دل، سب اب ایک تھے۔ کچھ دن گزر گئے۔ مائرہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ شام کا وقت تھا، باہر ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ انایا کچن میں چائے تیار کر رہی تھی کہ زوار اندر آیا۔ اس نے انایا کو دیکھا جو چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ زوار آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کچن میں آ کر انایا کو کام میں دلچسپی لی۔ چائے بن رہی ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ انایا چونکی اور پیچھے مڑی۔ جی، ابھی بس بننے والی ہے۔ زوار نے کچن کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھا اور انایا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم بہت ہی زیادہ کام کرتی ہو انایا، تھوڑا آرام بھی کیا کرو۔ انایا مسکرائی۔ کام کر کے ہی تو سکون ملتا ہے زوار، یہ گھر میرا ہے، تو پھر کام کیسا؟ زوار نے گہری نظر سے انایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا احترام تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ گھر تمہارا ہے، تم نے اسے بنایا ہے، میں تو بس ایک عمارت کا مالک ہوں، تم نے اسے گھر بنایا۔
अनाया ने चाय का कप ट्रे में रखा। जवार ने फौरन आगे बढ़कर वो ट्रे ली। चलो बाहर बाग में बैठते हैं, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। वो दोनों बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। मायरा अंदर अपने कमरे में कुछ पढ़ रही थी। खामोशी थी, सिर्फ दूर से परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। जवार ने चाय का कप उठाया और अनाया की तरफ देखा। मुझे वो दिन याद है जब तुम इस घर में पहली बार आई थी। जवार ने बात शुरू की। मुझे लगा कि ये एक मुआहदा है, कुछ वक्त का साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए और मायरा के लिए इतनी ज़रूरी हो जाओगी। अनाया ने कप होंठों से लगाया। इंसान कभी नहीं जानता कि ज़िंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। जवार ने अपना कप मेज़ पे रखा और अनाया की तरफ थोड़ा झुका। मैंने बहुत देर कर दी ये कहने में अनाया। मैं बहुत खुशगर्ज था। मैं अपनी यादों के बोझ तले दबा हुआ था। तुमने न सिर्फ मायरा को माँ दी, बल्कि मुझे भी दोबारा जीने सिखाया। शुक्रिया मेरे साथ निभाने के लिए। अनाया के दिल में एक लहर सी उठी। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है जवार, मैं तो सिर्फ वही कर रही थी जो मेरा दिल कह रहा था, और मेरा दिल आपके साथ सुकून महसूस करता है। जवार ने अनाया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका लिमिस गर्म और पुरसुकून था। तुमने सब्र किया, तुमने खामोशी को बर्दाश्त किया, और तुमने मुझे बदलने का मौका दिया। मैं वादा करता हूँ कि अब ये सफ़र हम साथ तय करेंगे। अब कोई माजी, कोई साया हमारे बीच नहीं आएगा। अनाया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जानती थी कि ये अल्फाज सच्चे हैं। जवार ने आखिरी बार अपनी अना को तोड़ दिया था। वह मुकम्मल तौर पर उसका था। रात का खाना सबने साथ खाया। मायरा बहुत ही खुश थी। वो बार बार अनाया से बातें कर रही थी। खाने के बाद जवार ने कहा, मायरा आज हम जल्दी सोएंगे, कल सुबह हम सब मिलकर बाग में जाएंगे। अनाया ने कुछ नए पौधे लगाने हैं। मायरा खामोशी से उछल पड़ी, जी पापा। रात को जब मायरा सो गई तो जवार अनाया के कमरे में आया। वो किताब पढ़ रही थी। जवार ने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। अनाया, उसने नरमी से पुकारा। अनाया ने किताब बंद कर दी। जी। जवार ने उसके बालों को कान के पीछे किया। उसकी उंगलियां अनाया के चेहरे पे फिरने लगी। तुम जानती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी इतनी मुकम्मल हो सकती है। तुमने मायरा के लिए जो किया वो मैं कभी नहीं कर सकता था। तुमने मुझे वो खुशी दी जिसकी मैं लायक नहीं था। अनाया ने अपना सर जवार के कंधे पे रख दिया। आप लायक थे जवार, बस वक्त की ज़रूरत थी। अब हमारी एक नई शुरुआत है। जवार ने अनाया को गले से लगा लिया। वो लम्हा उन दोनों के लिए बहुत खास था। बाहर हवा चल रही थी और अंदर दो दिल एक हो रही थी। कोई दुख नहीं, कोई माजी का गम नहीं, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ साथ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने घर को रोशन किया। अनाया की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब है। उसने मुड़ के देखा तो जवार उसे देख रहा था। सुबह बखैर, जवार ने मुस्कुरा के कहा। अनाया ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, सुबह बखैर। वो उठी और बाग की तरफ की। मायरा पहले ही वहाँ मौजूद थी। वो तीनों मिलकर पौधे लगाने लगे। मायरा मिट्टी से खेल रही थी और जवार और अनाया उसे देखकर हंस रही थी। वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसे वो हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी। जिंदगी अब एक ख्वाब जैसी थी। कोई शिकायत नहीं, कोई तलखी नहीं। अनाया ने सोचा कि अल्लाह ने उसे कितना नवाजा है। उसने सब्र का फल पा लिया था। वो जो एक अजनबी की हैसियत से आई थी, आज इस घर की मलका थी। मायरा भागती उनके पास आई और दोनों का हाथ पकड़ लिया। हम सब साथ हैं ना? जवार ने अनाया को देखा, फिर मायरा को। हाँ बेटा, हम सब हमेशा साथ हैं। जवार ने अनाया का हाथ थामा। हमेशा के लिए। अनाया ने गहरी सांस ली। ये एक मुकम्मल ज़िंदगी थी। उसकी कहानी, उसका सफ़र, उसका मकसद, सब कुछ अब एक ही महवर के गिर्द घूम रहा था। उसे किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। वो जानती थी कि ये सुकून, ये मोहब्बत और ये अपनायत ही उसकी असल जीत है। घर की खिड़की से नज़र आने वाला सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। पूरे बाग को सुनहरी रोशनी से भर रहा था, जैसे उनकी ज़िंदगी में एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका हो। वो एक ऐसी सुबह जिसमें कोई अंधेरा नहीं था, कोई माजी का डर नहीं था, सिर्फ एक रोशन मुस्तकबिल, एक खूबसूरत साथ और ढेर सारी मोहब्बत। अनाया ने आंखें बंद करके उस लम्हे को महसूस किया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे हिम्मत दी, उसे सब्र दिया और उसे एक ऐसा जीवन साथी दिया जिसके साथ उसने अपने घर को जन्नत बना लिया था।